Till date, what we have been able to cover, till date we have discussed cholinergic neurotransmission, different steps of cholinergic neurotransmission, what are the different receptors of cholinergic nervous system to which acetylcholine acts. We have discussed at length different kinds of muscarinic as well as nicotinic receptors, where they are distributed, what is the response of these receptors when acetylcholine or other cholinergic drugs bind to them. So we have also discussed the pharmacological action of different cholinergic receptors distributed in different organs. So for example, when acetylcholine will act over muscarinic receptors located on the heart. Which muscarinic receptor is located in the heart, cardiac tissue? M2. M2. So once M2 receptors are activated, what will happen? There will be cardiac slowing. There will be decrease in cardiac rate. There will be decrease in impulse generation in the SA node. There will be decrease in impulse conduction rate in the AV node. There will be decreased muscular contractility in auricles and ventricles. Accordingly, heart action will be slowed. If we see in some other, accordingly we can say what we have discussed, what are the different responses in other body systems also. Now onwards we'll discuss what are the different cholinergic drugs available, and to which so in this particular class we'll discuss different cholinergic drugs. What do you mean by cholinergic drugs? These are the drugs which bind to cholinergic receptors, and once cholinergic receptors are activated, the different pharmacological responses as like cholinergic activation will start. So these we can also say these drugs as cholinergic agonists. These cholinergic agonists or cholinergic drugs are also called as parasympathomimetic drugs because these drugs mimic the activity of parasympathetic stimulation. So they have various names. They are called as cholinergic drugs or parasympathomimetic drugs or cholinergic agonists, right? So because why we are studying all these things when the cholinergic nervous system, जब हम कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं और कोलिनर्जिक एसिटाइलकोलिन के डिफरेंट एक्शंस पढ़ते हैं, तो अगर हार्ट की एक्टिविटी को एसिटाइलकोलिन स्लो करता है, कोई डिजीज कंडीशन है जिसमें टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम है, एट्रियल फिब्रिलेशन के प्रॉब्लम्स है, जिसमें वेरी इंक्रीज्ड हार्ट रेट है, ऐसा कोई पेशेंट है, उसके ट्रीटमेंट में हम क्या ऐसे ड्रग्स कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को ऑफर कर सकते हैं जो उसके हार्ट रेट को स्लो डाउन करे. तो इस तरीके के प्रोसेस में वी कैन स्टार्ट विद different kind of cholinergic drugs which we call as parasympathomimetic drugs. So we have discussed that they mimic the activation of post-ganglionic parasympathetic receptors where acetylcholine act. We have discussed the broad classification of parasympathomimetic drugs. So last class में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनका जो क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली तीन टाइप से कर सकते हैं. इसमें दो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं. फर्स्ट वन इज डायरेक्टली एक्टिंग cholinergic drugs which directly act over the either muscarinic or the nicotinic receptors, and the second class will be indirectly acting drugs. So how these indirectly acting drugs will act? They will indirectly activate the cholinergic receptors. These indirectly acting drugs will not directly attach to either muscarinic or the nicotinic receptors. So इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स किस तरीके से काम करते हैं. और एक थर्ड एक ग्रुप है गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट्स का. हम जानते हैं कि गैंग्लिया जो है ऑर्डिनरी गैंग्लिया, उसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, और तो गैंग्लिया में जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन है वहाँ पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं तो उनको जो एक्टिवेट करने वाले जो ड्रग्स हैं उनको हम गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट्स बोलेंगे. तो ये तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशंस है. वन बाय वन देखें हम कि व्हाट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स और गैंग्लियोनिक स्टिमुलेंट्स कौन कौन से एजेंट्स हैं. एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है
कि डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में विजय शंकर बताएगा क्या लिखा हुआ, कौन कौन दो क्लासेस हैं। फर्स्ट क्लास इज कोलिन एस्टर्स एंड सेकंड क्लास इज नेचुरल अल्कलॉइड्स। कोलिन एस्टर्स में तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दिया हुआ है। फर्स्ट इज एस्टाइल कोलिन, सेकंड इज बेथाकोलिन एंड थर्ड इज बेथेनकोन। और नेचुरल अल्कलॉइड्स में मस्करीन, पाइलोकार्बिन एंड एरिकोलिन। अकॉर्डिंगली सेकंड क्लास जो है इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में जो है इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताया था कि they will be reversibly or irreversibly inhibiting the acetylcholine esterase enzyme which degrades the acetylcholine neurotransmitter। तो इस एंजाइम को अगर इनएक्टिवेट कर देता है तो जो acetylcholine का इनएक्टिवेशन नहीं होगा और acetylcholine के इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन से जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ रहा है वो इस ड्रग का इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक रिस्पांस होगा। इसमें दो टाइप के ड्रग्स है, एक रिवर्सिबल acetylcholine esterase एजेंट्स हैं, एक इरिवर्सिबल। इसमें रिवर्सिबल जो acetylcholine esterase एजेंट्स हैं उनका तो हम फार्माकोलॉजिकल क्लिनिकल यूजेस कर सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल जो acetylcholine esterase कंपाउंड्स हैं बेसिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स हैं, कार्बामेट्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका कोई बहुत ज्यादा क्लिनिकल यूजेस नहीं है और सिंपली पॉइजनिंग कॉज करते हैं, तो उनका कंसर्न है। ठीक है, वन बाय वन देखें। सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो कंपाउंड है यहाँ पे हम सबसे पहले अब यहाँ से शुरू करेंगे। एस्टाइलकोलिन एस्टर्स में सबसे पहले पढ़ेंगे एस्टाइलकोलिन। एस्टाइलकोलिन के बारे में देखें कि एस्टाइलकोलिन क्या है। जैसा अभी तक एस्टाइलकोलिन के बारे में हमने पढ़ लिया कि एक नेचुरल कोलिन एस्टर है जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, सारे जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी एनिमल किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें भी न्यूरोट्रांसमिशन हो रहा है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें न्यूरोट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। तो ये मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट वर्सेटाइल न्यूरोट्रांसमीटर है एस्टाइलकोलिन, सब में प्रेजेंट है, ऑल मैमल्स में, ऑल इनवर्टिब्रेट्स में, ऑल वर्टिब्रेट्स में अवेलेबल। लेकिन अब जो वर्टिब्रेट का जो एस्टाइलकोलिन है और इनवर्टिब्रेट का एस्टाइलकोलिन है और उनके जो रिसेप्टर्स हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, कुछ डिफरेंसेस होंगे। बाद में क्लास चल रहा है, बाद में नहीं, अभी नहीं आने की। तो एस्टाइलकोलिन के बारे में बता रहा था कि एस्टाइलकोलिन का सारा एक्शंस देख लिया कि एस्टाइलकोलिन जो है इसका मस्कर्निक एक्शन है, निकोटिक एक्शन है, सारे टाइप के कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर वजह से एस्टाइलकोलिन को हम क्लिनिकली यूज नहीं कर सकते। क्लिनिकल ट्रीटमेंट में या तो पेशेंट को होगा कि हार्ट रेट स्लो करने की जरूरत हो सकता है अगर टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम है, या फिर उसका जीआई मोटिलिटी बढ़ा हुआ या जीआई प्रॉब्लम है वहां ठीक कर सकते हैं, या कहीं तो कोई हमें किसी ड्रग को क्लिनिकली यूज करने के लिए हमें उसका सिलेक्टिव एक्शन चाहिए, उसका जनरलाइज्ड ब्रॉड एक्शन नहीं चाहिए। लास्ट क्लास में भी आपको एम्फसाइज किया था इस फैक्ट को। इस पर्टिकुलर रीजन से एस्टाइलकोलिन इज नॉट यूज्ड थेरेप्यूटिकली और क्लिनिकली ड्यू टू टू इंपॉर्टेंट रीजन। पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसका नॉन सेलेक्टिव एक्शन है। इसका जो है एक्शन है वो नॉन सेलेक्टिव है, नो सेलेक्टिव एक्शन है। यहाँ दिख रहा है ना आपको, नो सेलेक्टिव थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। हम चाहेंगे कि हार्ट में सिर्फ काम करे तो हार्ट, लिवर, किडनी, जितना जीआई ट्रैक्ट है, स्मूथ मसल्स हैं, सबको एक्टिवेट कर देगा। तो फिर हम इसको क्लिनिकली यूज नहीं कर सकते। और दूसरा है कि अगर यूज भी करते हैं तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जैसे एक टैबलेट खाते हैं, एक इंजेक्शन लेते हैं तो 12 घंटे बाद फिर रिपीट करें, 12 घंटा उसका एक्शन हो रहा है। लेकिन इसका एक्शन जो है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो वेरी शॉर्ट है, वेरी ब्रीफ है। विद इन मिनट्स जो है, कुछ मिनट, चंद मिनट काम करेगा, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय करने वाला जो एंजाइम है, जितने भी कोलिन एस्ट्रेजेस हैं, कौन कौन से, ये विपिन बताएगा बॉडी में कितने टाइप के कोलिन एस्ट्रेजेस हैं। कोलिन एस्ट्रेजेस, श्रुति, कितने कोलिन एस्ट्रेजेस हैं? एस्टाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करने वाले एंजाइम्स कितने हैं? एस्टाइलकोलिन को कौन सा एंजाइम डिस्ट्रॉय करता है? एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज। एसिटाइलकोलिन ट्रांसफरेज, वेरी रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, रॉन्ग आंसर।
ये इसका सिंथेसाइजिंग एंजाइम है, ये सिंथेसाइज करता है। बच्चे इन चीजों को याद करके नहीं रखोगे, दूसरा बोलोगे तो गलत हो जाएगा ना। इसको कौन सा एंजाइम डिस्ट्रॉय करता है? एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। यस, इसका जो डिस्ट्रॉइंग एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ये बॉडी में कहां प्रेजेंट होता है एंजाइम? विपिन चौधरी, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज बॉडी में कहां प्रेजेंट होता है? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर कहां रिलीज होता है? विजय शंकर, ये सर प्रीसिनेप्टिक गैंग्लिया में सर। मतलब जितने भी जो साइनेप्सेस है ना नर्व टर्मिनल्स में जो है वहां रिलीज हो रहा है, तो रिलीज यहाँ हो रहा है तो डिस्ट्रॉय भी यहीं पे होगा ना। तो ये एंजाइम को जो नर्व साइनेप्सेस हैं उसका वो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे एंजाइम बैठा हुआ रहता है कि जैसे ही हिट करेगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसके अलावा कोई कोलिन स्ट्रेज है जो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर सकता है? जिसको मैं हिंट देता हूं उसको स्यूडोकोलिन स्ट्रेज बोलते हैं। कौन सा एंजाइम है? एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज को ट्रू कोलिन स्ट्रेज बोलते हैं। एक स्यूडो कोलिन स्ट्रेज है, नकली है, वो ओरिजिनल कोलिन स्ट्रेज नहीं है जो ब्लड में अवेलेबल होता है, लीवर में होता है। बेसिकली उसका फंक्शन है डाइजेशन करना। जितने भी एस्टर कंपाउंड्स हैं जो हमारे फूड में आते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। एसिटाइल कोलिन एस्टर है, ब्लड में अगर अवेलेबल हुआ वो कोलिन स्यूडोकोलिन स्ट्रेज तो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसका नाम है ब्यूटाइरिल कोलिन स्ट्रेज। ब्यूटाइरिल कोलिन स्ट्रेज का डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से कि एसिटाइल कोलिन को थेरेप्यूटिकली क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, क्योंकि एक नॉन सेलेक्टिव एक्शन। सर ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का ब्रेकडाउन जो है स्लो करता है। कौन? ब्यूटाइरिल कोलिन एस्टरेज। यस यस यस, अभी आ रहे हैं, अभी कट गया था तो फ्लैशबैक में थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई एसिटाइल कोलिन इज नॉट यूज्ड थेरेप्यूटिकली ऑल्दो इट हैज गॉट वेरी गुड एक्शन ओवर ऑल द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। इसका दो इंपॉर्टेंट रीजन है कि एक नॉन सेलेक्टिव एक्शन है, इससे क्या नुकसान होगा वो आप लिखेंगे, और इसका वेरी ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, फ्यू मिनट्स में इसका एक्शन खत्म हो। और इसका जो ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसमें बता रहा था कि जो एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय करने वाले बॉडी में दो टाइप के एंजाइम है। एक तो है ट्रू कोलिन स्ट्रेज जो है, पहला जो एंजाइम है ब्रीफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसके दो रीजंस है। एक तो है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम है, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एक एंजाइम है, ये है ट्रू कोलिन स्ट्रेज। और एक दूसरा जो एंजाइम है वो है ब्यूटाइरिल कोलिन स्ट्रेज। यस सर, BU से ब्यूटाइरिल लिखें, CHE ब्यूटाइरिल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम। तो ये सेकंड जो एंजाइम ब्यूटाइरिल कोलिन है ये नॉर्मली एक एस्टर है जो डाइजेस्टिव फंक्शंस रखता है, लीवर ब्लड इन ऑर्गन्स में अवेलेबल है। और एसिटाइल कोलिन को अगर थेरेप्यूटिकली यूज करेंगे तो विद इन मिनट्स इनका एक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से एसिटाइल कोलिन को थेरेप्यूटिकली यूज नहीं कर सकते। एसिटाइल कोलिन क्लियर है? आगे चले? यस जी सर। ओके, सेकंड जो है वो अब अदर एसिटाइल कोलिन को आप जब यूज नहीं कर सकते तो और दूसरे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स क्या क्या हैं? तो उसमें है पहला है मेथाकोलिन। मेथाकोलिन आपको अगर याद होगा तो M2 एगोनिस्ट है, याद है? M2 जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो उसमें ये M2 का एगोनिस्ट है, M2 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। तो मेथाकोलिन इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज एसिटाइल बीटा मेथाइल कोलिन, इसका केमिकल नेम है। और इट इज सिंथेटिक कोलिन एस्टर है, ये कोई नेचुरल कंपाउंड बॉडी में अवेलेबल नहीं होता है, लैब में आप सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो इट इज सिंथेटिक कोलिन एस्टर व्हिच इज यूज्ड mainly in human therapeutics but infrequently, rarely employed in veterinary medicine. अब मेथाकोलिन में भी कुछ डिमेरिट्स हैं, लेकिन अब ये M2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है
और इसके प्रिंसिपल मस्कर्निक रिसेप्टर एक्शंस कहाँ हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। जो हार्ट है ना, आपको बताया था कि M2 एगोनिस्ट है, तो M2 रिसेप्टर कहाँ होता है? कार्डियोवास्कुलर टिश्यू में होता है, कार्डियक टिश्यू में। तो इसके हार्ट पे एक्शंस हैं। हार्ट को क्या करेगा ये? हार्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा। और ये चूंकि सिर्फ M2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, तो इसका कोई निकोटिनिक एक्शन नहीं है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। सिर्फ मस्कर्निक रिसेप्टर में मेनली M2 पे काम करता है। ये मस्कर्निक में मेनली जो है M2 रिसेप्टर पे ये काम करेगा, ठीक है। तो अब इसका कुछ क्लिनिकल यूजेस है, जैसे कि जो है वो एक क्लिनिकल यूज इसका है कि जो टैकीकार्डिया जानते हो, टैकीकार्डिया इंक्रीज्ड हार्ट रेट को बोलते हैं टैकीकार्डिया, ठीक है। तो टैकीकार्डिया का ट्रीटमेंट में इसको यूज कर सकते हैं। टैकीकार्डिया अगर एट्रियल ओरिजिन का है, टैकीकार्डिया बहुत सारे वजह से हो सकता है। अगर जो मेथाकोलिन का मेन साइट ऑफ एक्शन जो है वो कहाँ काम करता है? मेथाकोलिन जो हमारा पेस मेकर है ना, एसए नोड पे काम करता है। पेस मेकर से कार्डियक इंपल्सेस जनरेट होते हैं और उसको जो है वो पेस मेकर के जो कार्डियक इंपल्सेस हैं उसको स्लो करेगा। तो जो एट्रियल ओरिजिन का, ऑरिकुलर ओरिजिन का जो टैकीकार्डिया है, जो पेस मेकर से ज्यादा इंपल्स जनरेट होने की वजह से, तो इस दवा के देने से ठीक हो सकता है, इस मेथाकोलिन से। लेकिन पैरेलल हमें ये भी देखना होगा कि मेथाकोलिन M2 रिसेप्टर के अलावा भी M1 या M3 किसी रिसेप्टर को तो एक्टिवेट नहीं कर रहा है। तो ऑल्दो M2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, बट इसके डोजेज और कंसर्न देखना होगा। क्या इससे और सेफ एजेंट्स हैं जो टैकीकार्डिया के ट्रीटमेंट में यूज हो सकते हैं? तो आज के डेट में सो मेनी है सेफर अल्टरनेटिव्स हैं, इसलिए ये पुराना ड्रग है, अब इसको यूज नहीं करते थे, ठीक है। आगे चले हम लोग, नेक्स्ट देखें अब मेथाकोलिन के अलावा और क्या क्या कोलिन एस्टर्स हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा एस्टाइल कोलिन पढ़ा, उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मेथाकोलिन को हम क्लिनिकली यूज करने का स्कोप है। जो टैकीकार्डिया है, पेस में मेथाकोलिन का जो साइट ऑफ एक्शन है बताया कि पेस मेकर पे काम करता है, पेस मेकर की एक्टिविटी को स्लो करता है, इससे टैकीकार्डिया ठीक हो सकता है। और इसके अलावा एक ड्रग है कार्बाकॉल। कार्बाकॉल क्या है? ये कार्बामाइल कोलिन है इसका ये नाम। और ये जो है वो, ये जो कार्बाकॉल है इसका नाम क्या है? केमिकल नेम है कार्बामाइल कोलिन। ये क्या है कि एक्सट्रीमली पोटेंट कोलिन एस्टर है जो मस्कर्निक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर पे काम करता है, बोथ एट मस्कर्निक और निकोटिनिक रिसेप्टर। मेथाकोलिन सिर्फ मस्कर्निक रिसेप्टर पे काम कर रहा था, उसका निकोटिनिक एक्शन नहीं था। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको याद करनी होगी अगर ड्रग को यूज करना है क्लिनिकली। कार्बाकॉल का क्या ट्रीटमेंट, क्या यूज है? तो कार्बाकॉल का स्पेशलिटी जो है वो कोलिक। कोलिक एक ड्रग, एक डिजीज कंडीशन है जो हॉर्सेज में है। हॉर्सेज में कोलिक, जो जीआई ट्रैक्ट की मोटिलिटी कम होने की वजह से अगर पेन हो रहा है स्टमक में, उसको बोल रहे हैं कोलिक। तो उसके ट्रीटमेंट में हम कार्बाकॉल को यूज करते हैं। ये जीआई मोटिलिटी एंड टोन एंड मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाएगा, फ्लशिंग एक्शन होगा कि जीआई ट्रैक्ट का जो कंटेंट्स है फ्लश आउट हो जाएगा, कोलिक रिड्यूस हो सकता है। एक दूसरा जो है रूमिनेंट्स में एक क्लिनिकल कंडीशन होता है रूमिनल स्टेसिस। रूमिन का अगर मूवमेंट स्लो डाउन हो जाए तो उसको बोलेंगे रूमिनल स्टेसिस, या रुक जाए तो रूमिनल स्टेसिस, कैटल बफलोज में। तो इसमें हम रूमिनल स्टेसिस इन कैटल, इसके ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। और इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ कोलिक इन द हॉर्स, इसके ट्रीटमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो कार्बाकॉल कैसे ठीक करेगा? ये जीआई ट्रैक्ट की टोन एंड मोटिलिटी को बढ़ाता है। इसका ऑल्दो ये मस्कर्निक निकोटिनिक सारे एक्शन है, लेकिन ये जीआई ट्रैक्ट के मस्कर्निक रिसेप्टर पे ज्यादा काम करता है, तो थोड़ा सिलेक्टिविटी है। तो और बहुत ही इसका कम डोज है, 1 to 2 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस इसको इंजेक्शन देते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्बाकॉल इज डन विद ग्रेट केयर, सावधानी से करेंगे। ज्यादा डोज देंगे तो फिर सारे मस्कर्निक निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। इस डोज पे देंगे 1 to 2 मिलीग्राम टोटल, 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट नहीं, टोटल
अगर सबक्यूटेनियस देंगे तो रूरल स्टेसिस या वार्समर कोलिक को ठीक कर सकता है। दो ड्रग, 3 ड्रग पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट ड्रग है बेथेनकॉल। ज्यादा नहीं आज बताएंगे, एक आध ड्रग और बना करके ये कंपाइल करेंगे। नेक्स्ट, ये सब हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, कोलिन एस्टर्स हैं, केमिकल नेचर एस्टर है। ठीक है, क्यों, क्या फायदा नुकसान हो सकता है अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। नेक्स्ट ड्रग है बेथेनकॉल। बेथेनकॉल को कार्बामोइल मिथाइल कोलिन केमिकल नेम। इसका कार्बामोइल कोलिन था, इसमें कार्बामोइल मिथाइल ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा है ये, तो इसको कार्बामोइल मिथाइल कोलिन बोल रहे हैं। ठीक है, मिथाइल ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं था। तो केमिकली थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अलग है। क्या लिख रहा है, इट इज समवट, मेथाकोलिन और कार्बाकोल से मिलता जुलता है लेकिन ये सिर्फ मस्कर्निक रिसेप्टर पे काम करता है, इसका भी निकोटिनिक एक्शन नहीं है। कार्बाकोल का मस्कर्निक निकोटिनिक एक्शन दोनों था, इसका सिर्फ और सिर्फ मस्कर्निक एक्शन, और इसका निकोटिनिक एक्शन जो है बहुत कम है। ठीक है, very, it has got very little stimulant effects on nicotic receptors. अब एक चारों को, ये 4 अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, 4 कोलिन एस्टर्स। पहला जो पढ़ा एस्टाइल कोलिन, दूसरा जो है मेथाकोलिन, तीसरा कार्बाकोल, चौथा बेथेनकोल। अब इन चारों को अगर कंपेयर करें, क्योंकि ऑल 4 आर कोलिन एस्टर्स। कोलिन एस्टर जो भी है, एस्टर क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप का वो कंडेंस्ड फॉर्म, और अगर एक वाटर मॉलिक्यूल से उसको हम तोड़ सकते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल हटा के हम जोड़ सकते हैं, एस्टर बॉन्ड बन गया तो वो ये हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि हाइड्रोलिसिस का स्कोप, जो एंजाइम है वो एस्टरेज एंजाइम उसको हाइड्रोलाइज कर सकता है। एस्टाइल कोलिन का आपने पढ़ा रखा है कि एस्टाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम इसको एक वाटर मॉलिक्यूल यूज करके हाइड्रोलाइज कर देता है। तो अब हमारे बॉडी में 2 कोलिन एस्टर्स हैं, एक है एस्टाइल कोलिन एस्टरेज है और एक है ब्यूटाइरिल कोलिन एस्टरेज। एक को हम ट्रू कोलिन एस्टरेज बोलते हैं, एक को हम स्यूडो कोलिन एस्टरेज बोलते हैं। दोनों से अगर कंपेयर करें तो एस्टाइल कोलिन को, जो एस्टाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम है 2+ दिया, यानी कि वेरी फास्ट रेट में मेटाबोलाइज करता है। ये जो है मिली सेकेंड्स में, 1 सेकंड का 1000वें हिस्से टाइम में ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जबकि ब्यूटाइरिल कोलिन भी डिस्ट्रॉय करेगा स्लोली, कुछ सेकंड लगता है इसको टाइम डिस्ट्रॉय करने। सेकंड देखें, मेथाकोलिन जो है, मेथाकोलिन को भी एस्टाइल कोलिन एक सिंगल प्लस है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, मेटाबोलाइज कर सकता है, लेकिन ब्यूटाइरिल कोलिन में निगेटिव है, नहीं होगा। और बाकी सब में निगेटिव है, बाकी सब में देखिए निगेटिव है। कार्बाकोल, बेथेनकोल, ये सब जो है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन से रेसिस्टेंट है। कहने का मतलब है इन ड्रग्स को दीजिएगा तो लंबा समय तक बॉडी में उसका हाफ लाइफ होगा, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नॉर्मली नहीं हो रहा। दूसरा, एक्शंस देखिए, मस्कर्निक, निकोटिनिक, तो चारों ड्रग का मस्कर्निक एक्शन है, सारे मस्कर्निक M1 M2 सब पे एक्टिवेट करेगा। लेकिन एस्टाइल कोलिन का जो है नॉर्मली, एस्टाइल कोलिन तो मस्कर्निक निकोटिनिक दोनों पे काम ही कर रहा है। ये बेथेनकोल का बताया कि कोई निकोटिनिक एक्शन नहीं है, और मेथाकोलिन का भी निकोटिनिक एक्शन ना के बराबर, इसलिए प्लस माइनस दिया, इसका निकोटिनिक एक्शन है। क्लिनिकल यूजेस देखें तो क्लिनिकल यूजेस तो इसका भाई नॉन सेलेक्टिव है, तो इसका यूज नहीं कर सकते, थेरेप्यूटिकली इसका कोई यूज नहीं है। मेथाकोलिन को कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते हैं, जैसे टैकीकार्डिया। कार्बाकोल को जीआई ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर के ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। जीआई ट्रैक्ट में अगर कोलिक है या र्यूमिनल स्टेसिस है, वहां यूज कर सकते हैं। ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर सकते हैं, अगर किसी को स्टेसिस है, यूरिनरी स्टेसिस है, यूरिनरी ब्लैडर में उसका यूरिन रिटेंड है, यूरिनेशन नहीं हो रहा है, तो ये सारे ड्रग क्या करें, यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करें और यूरिनेशन प्रमोट होगा। तो यूरिनरी एटोनी एक कंडीशन है कि यूरिनरी ब्लैडर का टोन अगर खत्म हो जाए तो इनसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये कुछ एक कंडीशन है जीआई ट्रैक्ट और यूरिनरी ब्लैडर के, इनके ट्रीटमेंट में ये यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब ट्रीटमेंट करना होगा तो इतना नॉलेज से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अब यूरिनरी ब्लैडर का एटोनी है तो देखेंगे यूरिनरी ब्लैडर एटोनी के ट्रीटमेंट में आज के डेट में क्या क्या ड्रग अवेलेबल है। जो ड्रग अवेलेबल होगा उसमें जो बेस्ट ड्रग होगा वो यूज करेंगे। ये ना कि हमने पढ़ लिया, आज के डेट में कोई नहीं यूज होता। यूज होने का स्कोप है, हम आपको फार्माकोलॉजी बता रहे हैं,
लेकिन जब भी क्लिनिकल यूज करना होगा तो जो आज बेस्ट ड्रग है, जो सेफेस्ट ड्रग है, उनको हम प्रेफर करते हैं। आज का क्लास इतना पे कंक्लूड करते हैं। कल के क्लास में हम आपको यही आपको बताया हुआ कि क्लिनिकल यूजेस जो है वो टैकीकार्डिया और सुप्रावेंट्रिकुलर एट्रिकल ओरिजिन में हम मेथाकोलिन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही जो यूजेस हैं जो आपको बताया वो कंपाइल किया है। यूरिनरी ब्लैडर के एटोनी कैट्स में बिलियो में जो है इसका ट्रीटमेंट में मेथेनकॉल यूज होता है, 1 मिलीग्राम डोज यूज कर रहे हैं। कार्बाकॉल जो है वो कोलिक और इंपैक्शन के कंडीशन में यूज कर रहे हैं। तो अभी जो बताया उसी को कंपाइल किया हुआ है। कल के क्लास में जितने नेचुरल अल्कोलॉइड्स हैं, पाइलोकार्पिन, एरेकोलिन, इनको बताएंगे और मैस्करीन, और इसके अलावा इनका क्लिनिकल यूजेस और कोलिन एस्टर्स, जो भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें यहाँ डिस्कस करेंगे। किसी फार्माकोलॉजी के बुक से पढ़ते जाइए। आपको जितना भी कोलिन एस्टर्स बताया उसका डिटेल पढ़िए, अभी जितना भी बैकग्राउंड बताया है, और अगले नेक्स्ट क्लास में इसको कोशिश करेंगे कंपाइल फिनिश करने के लिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल पहले का अभी तक कोई डाउट हो तो आप लोग के लिए अलग से कोई डाउट क्लास रखने की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ पूछने के लिए। नहीं सर। हाँ, तो अगर नहीं है तो इतना पे हम आज स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।